session we discussed about in last session we discussed about higher high formation. Three people are some more people are joining, so let them admit all. Okay, so I think everyone have joined. So now in last session we discussed about higher high formation and something about Dow theory. What is Dow theory? Simply, let me remind you once again. Simply, Dow theory is like price is going up first and then it will retrace. It has to retrace. Why it will retrace? That is important, because if we will think logically, some people who bought at these levels will definitely somewhere sell somewhere to book profit. You are not going to hold the Reliance for lifetime. If you bought at 2000 level, then somewhere maybe at 2100, 2300, 2500, no one knows, but you will sell, at least you will sell that positions. Yes. So when you will sell, you will become a seller, right? So due to this selling pressure, the stock price will fall. Consider yourself as a big money, not as a retail trader right now. Consider yourself as a big money. So जब हम यहाँ पे sell करेंगे, then we will turn into a seller, and due to our selling pressure, the price will drop, right? Then again, after some times or some days, new big money will enter. Like maybe Chirag Patel will enter, and he will think, okay, boss, this level is good. So he will start buying. And again, when you sold your money here, your stocks here, after some day you will see कि okay, price is again going up, so you can again buy at these levels, right? So these two big monies are going to make the price up. This is simply Dow theory. Dow theory says कि nothing can go in a straight line in our life or in stock market. Never price can go in a straight line. It has to retrace. That is why if you will look at Reliance chart, it went from 800 to 2400 level, but it retraced to 1900, 1800 level, holded that position for some period, and then it is continuing its position again. Now, today's discussion, next thing we discussed that day was a very important concept, that if price went up considerably or went down considerably, we are taking just buying case. We are not discussing selling. You can just reverse this concept. Nothing else is important. Okay. So suppose price went considerably up and then it retraced a little, or it started holding its level. So what is the major possibility? The higher possibility is it will continue its momentum up, because when the price is going up, some people bought at these levels and they are booking profit. Like I bought 200 quantities at these levels, let's say, and here I sold 200 quantities. So if due to this 200 quantity demand, price went up, then because of these 200 quantities supply, the price should come down, but it is not coming down. It is holding that level. Means although I am selling at these levels, but some people are interested in buying, and due to this accumulation, suddenly the sellers failed and price started going up. This is what happened in Asian Paints, if you remember that example from our last week. Now in most of the, if you will see the most of the mid cap and small caps nowadays, they are forming similar structure like this. They are going up, holding 2-3 days at that level, and again it is starting its level up. This is what we discussed in our last session. So now what we are going to discuss today,
today's session is very important because we are going to discuss some chart patterns based on the we are going to discuss some chart patterns based on our theory जो हमने बात किया है कि हायर हाई फॉर्मेशन होगा और कैसे उसको हम आगे ट्रेड कर सकते हैं. Like what is a double, the first pattern is double top pattern. We are discussing double top pattern first. Let's see कि प्राइस यहां से ऊपर मूव हुआ and then it retraced back. Again प्राइस अब ऊपर गया and it went up to this higher level or somewhere up or somewhere down. It doesn't matter. Remember, in chart patterns only psychology matters. Where the price is going, it is not going to affect. Here what happened, some people bought it at these levels and then they sold, so price came below, but after some times they again started buying and price went up. So the next what can happen, the next thing can happen is either price go up or it can go down, like it can go down and forming a double top pattern. This is the two possibility that we have, right? So how we will trade in such situation? So before trading at these levels, we will have to look at previous condition, ki how price have moved. So for previous condition, we will look for Dow theory. Like let's say ki price has made this kind of pattern in past, means it went up and retraced a little and then it started going up, right? And again it is forming this sort of pattern. So our expectation is to not wait for this double top kind of pattern. We will go for continuation pattern. Why continuation pattern? Because look, the previous trend is up and in no matter we can we are not here to predict the market. What is predicting and following that we have to understand. If you are looking for double top at this level, means you are expecting कि okay boss, market तो काफी ऊपर आ गया है, अब ये यहाँ से गिर जाएगा. Like some people are texting me every day on our Insta page कि प्राइस बहुत ऊपर चला गया है, फंडामेंटल्स वीक है, मार्केट गिर सकता है. We should avoid predicting such things. These all things are nonsense for me. Who knows price will come down or price will go up? When Nifty was at 10,000 levels, people were predicting कि market तो अब नीचे गिर जाएगा, अब ऊपर नहीं जाएगा. Then Nifty went up to 11,000. Then again same happened at 12,000. कि okay, 12,000 all time high है, market is going to take rejection from that level. But nothing happened. Believe me, and market continue shooting up. And now we are at 15,450 level. So who knows कि market कैसे बोल सकते हो कि market cannot go up to 18,000 or 16,000? You cannot say. Let us wait for price to prove itself कि हाँ boss, now I am ready to go down. Okay, so when we will get confirmation, that I will also discuss. But first we are talking about double top pattern. So here we are not interested in selling, we are interested in buying, and that is why most of the time double top patterns in an uptrend fail. So how we can trade when price will go at this level, this high level, we will wait for a retracement. We will wait for a small correction. If there will be a small correction and then again it will go up, we are going to buy it. That's it. This is the simple strategy. Most of the stocks, if you will visit, are at their all-time high. Can you tell me which stock shows such pattern in recent time? Last week also, and we discussed about it, that stock. Clearly Asian Paint. Remember? Asian Paint shows such a pattern.
it was its all-time high, then it retraced a little, means up to 24,2300 level. It came up to this level, and after some retracement, it opened, gapped up, and 100 points move in a single day, and now it is continue moving up. This is what happened. What about Burger King? We will discuss this stock specific. You can ask it in our Discord group also. We will discuss that thing there. We are discussing some concepts here, so better to understand the concept. If you have any stock specific doubt, you can ask us in on our Instagram DM or in our Discord channel, right? Well, so here we are not waiting for double top pattern. So the question is, when we will wait for a double top pattern? When we will trade a double top pattern? Wait. So my understanding for trading a double top pattern is कि first I need a, let me draw this clearly, कि उसके बाद और थोड़ा सा better understanding हो. Okay. So here is the downtrend, right? Here is the downtrend, and price went up. It retraced, like in daily candle, you can see price is going down, and then it went up in retracement, and again it made such a pattern, such double top pattern. Then it will be a good and high probability trade to take. Otherwise, in an uptrend, finding a double top pattern in an uptrend is just going for a suicide, because ultimately it will hit your stop loss. Many of time, how many of time you have felt that in intraday also you went for a double top pattern, like price went up around, let's say 100, it touched 100 level around 10 o'clock, and then in second half, means around 10 to 12:30, it came up to 98, 97, and then again at 1:30 it went up to 100, and then in expectation of a double top, you shorted at that level, and eventually it hit your stop loss and moved around 4%, 3% up. Have you ever faced such situation in intraday? Anyone? Yes, I have faced. Yeah, exactly. That is the reason, because we are trying to predict the market. We are not following the market. At that high level, we should wait for a small correction, like a bullish hammer. If we can see 5-minute bullish hammer in 5-minute chart, if you can see some sort of consolidation or flag pattern near that high in 5-minute chart or 3-minute chart, then we can go long. Are you getting my point? Yes, sir. Okay. So now I think you have understood when to trade a double top pattern, correct? The next thing is similar concept, nothing different. Kabir is asking, can you use candle bar for better understanding? Actually, candle bar, drawing this candle bar is very difficult. It will take around 5 minutes for me to draw a candle bar here. So we will look this concept in our chart, and we will try to understand when to trade a double top and double bottom pattern in our chart also. So the next concept is double bottom, because we have discussed double top, so we should discuss a double bottom also. Let us say the market went up a little up, and then it started going down. It went down in retracement. Again, it went up like this. And I hope now you can understand what I wanted to convey from this chart. Okay, when the double bottom pattern will be formed in a retracement, and then we are going to buy this, right? Then we will buy this at this level. I hope everyone understand the basic rule of buying or selling double top or double bottom pattern.
in case you do not know, let me tell you once more. Like if there is a double top pattern, this is called double top pattern, right? And if we are trying to trade this pattern, so we will have to wait for a retracement. We will have to wait for the break of this neckline, right? Break of this neckline, and then we will sell below this neckline with a stop loss above this candle, above this high, for a target up to the length of this neckline from the top. Clear? But according to my strategy, why I take use risk reward trades? Because according to my strategy, I do not sell at this break of this neckline. I sell at this high. Psychologically sound setup it is, so we can sell at this high. Why? Because the stock is already in retracement. First thing, sorry, stock is already in downtrend. Then it went into uptrend. It went into a One doubt. How would Yeah. we know it's double? How would we know it's the neckline of that stock? How would we come to know? Okay, so from where the stock has reversed, like in this uptrend, as you can see, this green candle where I've put my cursor, it retraced up to some extent. So mark that level, and it again went up, na? But पता कैसे चलेगा और नीचे जाने वाला है नहीं जाने वाला है? अरे अच्छा अच्छा, मैं उसको चार्ट पे दिखा देता हूँ तो वो ज्यादा बेटर क्लियर होगा, ठीक है? Okay. So in next thing is double bottom में भी सेम वैसा ही होता है कि फर्स्ट अपने को क्या करना है, एक रिट्रेसमेंट ढूंढना है, एंड देन इन दैट रिट्रेसमेंट वी आर गोइंग टू लुक फॉर अ डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न, एंड देन ऑन दिस ब्रेकआउट वी आर गोइंग टू ट्रेड. हाँ, I was Abhi, if you buy at the support level, like I bought many stocks at the support level, फिर है ना उसके बाद भी थोड़ा ऊपर जाते फिर नीचे आ जाते एकदम. Exactly वो होगा. Retest. Because you are buying it at first time when the price, like we could have bought at this candle also, no, which I have removed at this candle also, no, लेकिन हमने यहाँ buy नहीं किया. Why? Because फर्स्ट केस में ये नीचे डाउन आ सकता था. Look, फर्स्ट जो केस था उसमें ये डाउन आ सकता था. There is high probability कि डाउन जा सकता है और ये डाउन गया भी. But when it went up second time, then we are sure कि now it is going up and nothing can stop us. Okay. But in worst case, we will use our stop loss. Always we will use our stop loss. So what I was discussing that in my case, I used to sell at this level or I used to buy at this level. Like if many of you knows that I bought Reliance at 1970 level. You remember when most of the peoples were not even looking at Reliance, I bought it at 1970, 3-4 days back, and you can see the result. Now 10% and almost 7-8% return in just 3 days, and that too in a stock like Reliance Industry. Well, let us go on to the chart, and then we will understand कि कौन सा हम लोग. Okay. Yes, Piyush, what happened? भैया मेरे को ये पूछना था, इसमें जो आपने चार्ट पैटर्न्स बताए हैं, तो ये जो डबल टॉप है, दिस इज अ साइन ऑफ अ बुलिश. हाँ, मतलब okay, and while like seeing these patterns in intraday trade, which candle should I prefer for seeing these patterns correctly? जब अपने को जब रिट्रेसमेंट पे, लाइक जैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था कि यहाँ पे जैसे डबल बॉटम की बात करेंगे, डबल टॉप की बात करेंगे, बताओ. किसी एक की भी कर लीजिए. चलो हम लोग डबल पहले बॉटम की बात कर लेते हैं. डबल बॉटम में पहले तो हमको सबसे पहला क्राइटेरिया कि एक अप ट्रेंड होना चाहिए, क्लियर कट. अप ट्रेंड कैसे पता चलेगा? तो हमको क्लियर कट एक हायर हाई फॉर्मेशन मिलना चाहिए, ठीक है? लाइक हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा कुछ होना चाहिए पैटर्न, ठीक है? लाइक हमारे पास एक ऐसा कुछ पैटर्न होना चाहिए हायर हाई, ठीक है?
एंड देन इन दिस रिट्रेसमेंट अगर हमको डबल बॉटम मिलता है तो देन वी आर गोइंग टू बाय। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब हमको इस पॉइंट पे तुम कैंडल की बात करो कि कौन सा कैंडल हमको मिलना चाहिए। क्लियर कट है कि बुलिश कैंडल होने चाहिए। अब बुलिश कैंडल कौन कौन से होते हैं? पहला बुलिश कैंडल तुमको हो जाएगा कि बुलिश हरामी पैटर्न होता है जो वो। सेकंड बुलिश कैंडल हो जाता है बुलिश हैमर पैटर्न हो जाता है। थर्ड बुलिश कैंडल हो जाएगा कि इनगल्फिंग पैटर्न हो जाता है। लेकिन जब तुम at a certain level when you will start working in market continuously after some period of experience you will understand कि all these patterns are same। समझ रहे हो? मैं एक काम करता हूँ, एक दो दिन में आज या कल अपने इंस्टाग्राम वाले पेज पे एक ऐसा पोस्ट बना देता हूँ जिसमें कि बहुत सारे मतलब 2-3 कैंडल को कंबाइन करके कौन सा कैंडल बन रहा है। लाइक सपोज तुम एक बार इमेजिन करो कि इफ यू सी अ ग्रीन कैंडल, लेट मी ड्रॉ दिस। एक रेड कैंडल हमको यहाँ पे दिखा, ठीक है, और उसके बाद ये जो कैंडल एक दिखा ये हमको ग्रीन कैंडल दिखा। ठीक है, इसको मैं ग्रीन कर लेता हूं। ये ग्रीन कैंडल हमको दिखा, ठीक है। अब प्राइस यहां गया, ये 5-5 मिनट के कैंडल्स हैं, ठीक है। तो 10 मिनट के कैंडल में क्या दिखेगा तुम्हें? अगर मान लो यहां चला गया प्राइस, तो 10 मिनट के कैंडल में तुमको क्या दिखेगा? 10 मिनट के कैंडल में तुमको एक हैमर पैटर्न दिखेगा। हाँ, समझ आया थोड़ा बहुत? अगर 5 मिनट के 2 कैंडल अगर इस टाइप के बन रहे हैं तो एक हैमर दिखेगा। तो मतलब ये क्या किया, इस ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को इनगल्फ कर लिया। यस, तो जब ये इनगल्फिंग पैटर्न था तो ये हैमर बन गया। क्लियर? सिमिलरली ऐसे ही बहुत सारे चार्ट पैटर्न मर्ज होके बनते हैं। तो वी विल कीप डिस्कसिंग दीज थिंग्स स्लोली। लेट अस फोकस ऑन आवर एजेंडा फर्स्ट। किसी और ने एक हैंड रेज किया था, कौन था? हाँ, कुणाल। सर टाइम फ्रेम क्या होगा इसका? डाउन ट्रेंड क्या होगा? नहीं, टाइम फ्रेम किसी भी टाइम फ्रेम में यूज करो, किसी भी टाइम फ्रेम में। प्राइस एक्शन का यही बेस्ट चीज है कि टाइम फ्रेम इज नॉट अ मैटर एट ऑल। तुम किसी भी टाइम फ्रेम में यूज करो, बट अगर तुम इस टाइम फ्रेम में अगर यूज करो, जैसे सपोज मान लो कि हम 5 मिनट में ये पैटर्न ढूंढ रहे हैं, ये डाउन वाला, ठीक है। तो 30 मिनट में या फिर 1 आवर के चार्ट में या फिर 15 मिनट के चार्ट में हमारा जो ट्रेंड है ये अप ट्रेंड होना चाहिए। डेली में हमको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 5 मिनट का कैंडल हम देख रहे हैं, तो अगर सपोज हम ये पैटर्न फाइंड आउट करने का ट्राई कर रहे हैं 15 मिनट में, तो क्लियरली हमारा आर्ली चार्ट में जो हमारा ट्रेंड होना चाहिए डाउन होना चाहिए, देन ओनली वी कैन टेक दिस ट्रेड। क्लियर? ओके, सो लेट अस गो ऑन टू चार्ट। एक बार हम लोग चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि ये पैटर्न हम लोग कहाँ कहाँ देख सकते हैं, फिर कैसा हम लोगों को फील आता है। ये दिख रहा है, ये पहले हम लोग रिलायंस को ओपन कर लेते हैं। रिलायंस हमने जो मैंने नया रिसेंट जो मैंने ट्रेड लिया था, हाँ देखो, मेरा जो ट्रेड लेने का रीजन था वो क्लियर था। यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑल्दो मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया था अपने रील वाले वीडियो में, बट अगेन उसमें एक्चुअली 30 सेकेंड्स में कुछ किसी को क्या बता सकता है, बट जो लोगों को पसंद है दैट वी विल हैव टू शेयर टू ग्रो एटलीस्ट। उसके बाद ये देखो, ये रिट्रेसमेंट आया एंड देन इट वेंट अप फर्स्ट टाइम। मैंने फर्स्ट टाइम पे बाई नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट टाइम ये डाउन गया। जो क्वेश्चन पूछ रहा था ना कि हम लोग बाई करते हैं सपोर्ट पे फिर वो नीचे आ जाता है, वो यही रीजन होता है क्योंकि तुम जो पहला जो अप गया है इस पे तुम बाई कर रहे हो, और मैंने इस रिट्रेसमेंट का वेट किया और जब ये इसके ऊपर निकला तब मैंने यहां कहीं इस लेवल पे बाई किया, ठीक है। एंड इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये प्राइस ऊपर गया, ठीक है, फिर एक रिट्रेसमेंट और ये फिर अप, ठीक है। अब देखते हैं कि ये देखो, ये जो ट्रेंड आ रहा था, ये जो ट्रेंड आ रहा था, इसके प्रीवियस जो ट्रेंड था ये क्या था, ये अप था। जस्ट प्रीवियस ट्रेंड अप था, और इस अप ट्रेंड के बाद ये जो रिट्रेसमेंट आया यहाँ पे डबल
बॉटम टाइप का पैटर्न दिख रहा है हमको। तो मैंने इस हैमर के आसपास 1932 के आसपास मैंने बाय कर लिया था इस हैमर पे, राइट। अगर हम लोग इसको एक लाइन ड्रॉ कर लें तो मैंने कहीं इस कैंडल के आसपास मैंने बाय कर लिया था, ठीक है। और उसके बाद ये ऊपर निकलता चला गया। एक पैटर्न क्लियर हुआ। यस। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कोई और। अब वो है क्या, HDFC किसका फेवरेट चार्ट है यार? HDFC बैंक, सॉरी, दिन भर HDFC बैंक। SBI। अच्छा हाँ अनुज, अच्छा SBI भी देख लेते हैं। HDFC बैंक देखते हैं। HDFC बैंक में मुझे काफी बेहतरीन पैटर्न ये सब मिले थे और मैंने यूजुअली मस्त ट्रेड किया था उन सब चीजों को। लेट मी टेल यू, देखो हम यहाँ पे कोरोना के बाद ये फॉल में थे हम, ठीक है। कोविड के बाद ये फॉल आया, हम यहाँ पे थे और यहाँ तक तो मुझे क्लियरली कोई क्लू नहीं था कि मार्केट कहाँ जाएगा। लेकिन जब ये ऐसे हायर हाई फॉर्मेशन बनने लगा, देन आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि ओके बॉस, नाउ मार्केट इज गोइंग अप। अब देखो ये एक अप ट्रेंड आया, ठीक है, और उसके बाद इफ यू विल सी, कैन यू सी दिस डबल बॉटम पैटर्न, ठीक है। यस। अब देखो लोग बोलते हैं कि डबल टॉप पैटर्न जो होता है वो टॉप आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। कर लो आइडेंटिफाई टॉप, आओ दिखाते हैं आइडेंटिफाई करना। ये मार्केट ऊपर गया, रिट्रेसमेंट ऊपर डाउन, डबल टॉप बना, यस, एंड देन बूम, SL हिट, मार्केट ऊपर। That is why in an uptrend you should not trade double top pattern, and in downtrend double bottom. Means uptrend में जब तुम हो तो डबल टॉप ट्रेड मत करो, और जब डाउन ट्रेंड में हो तो डबल बॉटम ट्रेड मत करो। कहाँ ट्रेड करना है वो हम थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे, बट एक दो और पैटर्न देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अगर बड़े टाइम फ्रेम में अगर देखें, इन अ बिगर पिक्चर, अगर वीकली टाइम फ्रेम में अगर तुम इसको देखोगे तो नो डाउट यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन है, इसको हम लोग अभी भूल जाते हैं। ये यहाँ पे एक अप ट्रेंड आया और उसके बाद ये रिट्रेसमेंट चल रहा था कंटिन्यू, एंड देन अगेन ये डबल बॉटम बनाया और ये ऊपर निकल गया, ठीक है। अगर तुमको इतने बड़े ट्रेंड के बाद अगर तुमको डर लग रहा है कि नो आई कांट ट्रेड एट दिस लेवल्स क्योंकि यहाँ पे मुझे अभी रिट्रेसमेंट आ सकता है, तो तुम फर्स्ट वाले अप मूव में नहीं कर सकते। क्योंकि देखो फर्स्ट अप मूव कहाँ कहाँ आया है, एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार अप मूव आया है, ये चौथी बार। तो क्या गारंटी है कि चौथी बार ये फेल नहीं होगा? फेल होगा, और अल्टीमेटली वही हुआ, ये फेल हुआ 4th टाइम भी। लेकिन जब ये 5th टाइम ये ऊपर गया है, इस लेवल को ब्रीच नहीं किया अब इसने, जो ये लो लगा था, जब ब्रीच नहीं किया ऊपर निकला, तो देन वी आर गोइंग टू सी सम गुड अप मूव। और ये ऑब्वियसली मुझे ऐसा लग रहा है कि 1650 तक ये लेवल तक अचीव कर लेगा इन कमिंग डेज, ठीक है। अब कौन सा एशियन पेंट, अच्छा SBI कौन बोल रहा था? SBI, स्टेट बैंक में देखते हैं कुछ चार्ट ऐसा कुछ बंधन देखें, बंधन यार, बंधन एक्चुअली बंधन वगैरह बैंक में जल्दी देखता नहीं हूँ, बिकॉज मजा नहीं आता उसमें, वो नीचे ही जाते रहते हैं। बट एनीवे हम लोग देख लेंगे अभी उसे। देखो ये जैसे देखो, ये एक अप ट्रेंड आया, एक अप मूव आया, नीचे गया, जस्ट लुक एट दिस, डबल बॉटम पैटर्न है। तो हम कभी भी डबल बॉटम को भैया ये जुलाई में वाले, जहाँ जुलाई पे है वहाँ डबल टॉप बनने के चांसेस थे पर बना नहीं है, तो वो कंफर्म कैसे होगा कि नहीं बनेगा? जुलाई में एक सेकेंड, जुलाई ये यहाँ पे ना, इससे पहले यहाँ से आपने स्टार्ट करी, यहाँ से डबल टॉप बन रहा था ये। अच्छा हाँ, तो फिर ये अच्छा ये यहाँ पे नहीं भैया, राइट में, हाँ ये मई और जुलाई के बीच में जहाँ आपने लाइन स्टार्ट करी है, लेफ्ट हैंड, अच्छा लाइन का लेफ्ट हैंड, अच्छा ये हाँ एग्जैक्टली वो एक्चुअली देखो, कभी कोई भी स्ट्रेटेजी है वो हमेशा तो तुम्हारी काम करेगी नहीं।
ठीक है, हमेशा तो काम करेगी नहीं तुम्हारी स्ट्रैटेजी। जैसे मैं यहाँ पे रहता, जैसे जो मेरी स्ट्रैटेजी थी, अगर मैं यहाँ पे रहता तो मैं इस लेवल पे अपना ट्रेड इनिशिएट करता, ठीक है, और अल्टीमेटली क्या होता, ये कंटिन्यू ये इसी रेंज में घूमता रहता, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऊपर जा नहीं पाया तो मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं करता ये। बट अल्टीमेटली मैं क्या देखता कि या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देता इस लेवल पे आके 205, क्योंकि 200 के ऊपर का अपना स्टॉप लॉस रहता है इन एनी हाउ, तो इस लेवल पे आके या तो स्टॉप लॉस हिट करता या फिर हम इस कंसोलिडेशन को देख के एग्जिट कर लेते, क्योंकि ये जो हमारा एक और कॉन्सेप्ट है जो इसी कॉन्सेप्ट का बेस है कि अगर किसी रेजिस्टेंस के आसपास कंसोलिडेशन होता है तो ब्रेकआउट होगा, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता। तो हमारी जो स्ट्रेटेजी है अभी ये प्राइस एक्शन वाली, इसमें एक बार ट्रेंड अगर हमने पकड़ लिया तो वी आर गोइंग टू हिट स्टॉप लॉस वंस, ओनली वंस, और उसके बाद हम लोग आराम से पूरा ट्रेंड एंजॉय करेंगे। जैसे एक दो बार और देखते हैं, एशियन पेंट, ये सब मेरे फेवरेट चार्ट हैं। एशियन पेंट हो गया, फिर उसके बाद रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया। जैसे देखो क्लियर, थोड़ा पीछे चलते हैं, अभी तो रिसेंट वाले एग्जांपल्स हमने काफी सारे देख लिए, कहीं पीछे कुछ एग्जांपल्स दिखे तो मजा आए। देखो हाँ, अब तो अभी तक तो हमने बात किया था डबल टॉप। मेन मेरा इंपॉर्टेंट ये था कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना कि हम लोग चार्ट पैटर्न को कैसे ट्रेड करें। जस्ट लुक एट दिस, क्या तुमको लग रहा है कि ये ऊपर गया? कौन सा पैटर्न बना है यहाँ पे? Isn't it हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर नहीं दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है। तो हमने हेड एंड शोल्डर ट्रेड किया यहाँ पे और बढ़िया मोमेंटम मिला। तो जब भी हमको बुलिश पैटर्न ट्रेड करना हो, ठीक है, जब भी बुलिश पैटर्न, जैसे यहाँ पे देखो ये बहुत पहले का ट्रेड है, ये हमको फर्क ही नहीं पड़ता है कि कितना रिट्रेसमेंट हुआ है। आई एम ओनली इंटरेस्टेड कि रिट्रेसमेंट होके दूसरी बार ये क्रॉस करे। तो ये डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बना, ये डबल बॉटम बना यहाँ पे, ये दो बॉटम यहाँ पे, और ये बेहतरीन ऊपर निकल गया। क्लियर? चलो लेट्स सी कि चार्ट पैटर्न फेल कहाँ हुआ है। भैया इसमें फिर एंट्री के लिए जब ये अपना ये जो मतलब जहां दो बार टॉप बनाया है इसने, जब ये क्रॉस करेगा तभी हम एंट्री करेंगे इसमें। नहीं, मेरी स्ट्रैटेजी होती है एंट्री के लिए कि मैं इसी लेवल पे, जब ये लो लेवल पे है ना, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट अबाउट प्रेडिक्टिंग द मार्केट, इट्स अबाउट फाइंडिंग लो रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटीज। तो तुम देखो, अगर मैं इस कंसोलिडेशन में अगर एंट्री लेता इसके ब्रेकआउट पे, तो मेरा रिस्क होता 20 रुपए का, और अगर मैं इस यहाँ पे अगर एंट्री लेता तो मेरा रिस्क होता 50 रुपए का। तो मैं क्यों इस चीज को यहाँ पे एंट्री लूंगा? मैं ही एंट्री लूंगा, अगर फेल होऊंगा तो 20 रुपए जाएगा। ओके, ठीक है। तो हमको हमेशा, जैसे देखो एक बार और देखो, एक छोटे टाइम फ्रेम में, जैसे एक छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखें तो ये अपमूव आया कैसा? डबल बॉटम। यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई। और ये जो स्ट्रेटेजी है, ये सारी प्राइस एक्शन वाली, ये सारी जो स्ट्रेटेजीज हैं, ये ऑलमोस्ट 80% टाइम काम करेंगे यार। दे आर नॉट गोइंग टू वर्क जस्ट 5%। और ऐसा कुछ नहीं है कि ये कम काम करेगा। जैसे देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये रिट्रेसमेंट आया, ये अपमूव, और इसके कंपैरिजन में ये रिट्रेसमेंट ऊपर नीचे, फिर ये अप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ? क्या हमारी स्ट्रेटेजी फेल हुई? नहीं, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं हुआ है। ऑल्दो ये कंसोलिडेशन में चला गया, एक लॉन्ग कंसोलिडेशन में, बट अगर हम यहाँ पे अगर एंट्री लिए होते, सपोज ये मैं यहाँ पे एंट्री लेना क्यों स्टार्ट किया? जस्ट बिकॉज
कि I want good risk reward ratio. अगर suppose if market is returning from this high also, then also I'm getting 1:2 or 1:3 risk reward, isn't it? So that is why I prefer to enter at this level कि यहाँ पे एंट्री हो रहा है, अपन निकल जाएंगे, घुस जाएंगे, कोई इशू नहीं है. नेक्स्ट एक दो और देख लेते हैं पैटर्न, उसके बाद देन वी विल. ओके हाँ, एक और इम्पोर्टेंट था जो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी बताया था, एंड वी फेल्ड इन दिस. सो फेलियर अपना समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी लर्न फ्रॉम आवर फेलियर्स, राइट. लुक, you all remember I posted this head and shoulder pattern. It gave a breakdown. Okay, it gave a breakdown and then retest, and again it started going down, but it is not going too fast, or it is not going down as we expected. ऐसा क्यों हो रहा है? Just because we tried to predict the market, we found this head and shoulder pattern in an uptrend. अगर ये डाउन ट्रेंड में मिला रहता तो डेफिनेटली ये काम करता. जैसे यहाँ पे जो अभी हमने बात किया था कि अगर if we would have traded this double bottom pattern, एक बॉटम बना, ऊपर गया, then again second bottom, उसके बाद ये up. If we would have traded this double bottom pattern, तो हमें easily profit मिलता, because market is already in an uptrend and we are trading above this range, so ये definitely हमें profit देगा. But at this level, we are going against the trend. Market is in uptrend and we are planning to go down based on this pattern. तो better time कब होता हमें इस टाइप की एंट्री लेने के लिए? The better time would be कि मार्केट ऐसा ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे आया, ऊपर, इसके बाद ये जो ये हाई है इसको ब्रेक ना कर पाए. So the first indication is if it is not going to break this high, it means the strength has ended. Strength खत्म हो गया मार्केट का. But selling pressure कब start होगा? When it will close below this. अगर इस लो के नीचे क्लोज करता है, then we can expect कि हाँ, now अब ये नीचे जा सकता है. After that, its movement will tell us that we should go in downside. Like अगर ये नीचे आ जाता, उसके बाद अप ट्रेंड में जाके ये डबल टॉप बनाता, ऐसे करके ये डबल टॉप बनाता, तो हम इसे ट्रेड करते. अगर ये नीचे आके, सपोज ये नीचे आया प्राइस, लेट मी डिलीट दिस, अगर ये नीचे आता, ये ऐसे नीचे आ रहा है ऊपर, और ये नीचे आके फिर ये फ्लैग पैटर्न बना रहा है, तो हम इसे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे. ऐसा नहीं है कि हम, ये मार्केट ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे रिट्रेस हुआ, फिर ऊपर गया और उसके बाद ऐसा मूव कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हम इसे नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे, हम इसे ऊपर ही ट्रेड करेंगे. आई होप यू ऑल वुड हैव अंडरस्टूड दीज पॉइंट्स जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था कि चार्ट पैटर्न को कैसे ट्रेड करें, कहां ट्रेड करें. किसी को कोई प्रॉब्लम है? अक्षत, हाँ अक्षत. एक्सक्यूज मी सर. हाँ सर, वो जो टाटा केमिकल्स में आपने हेड एंड शोल्डर्स ड्रॉ किए थे. हाँ 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 हाँ, तो जनरली हेड एंड शोल्डर्स मतलब इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स है ना, तो वो एक्चुअली रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, मतलब जनरली बोलते हैं कि रिवर्सल का है वो. टाटा केमिकल, लेट मी ओपन दिस चार्ट. ये हो गया डेली चार्ट में अपन थे, एंड मैंने ड्रॉ कर रखा था ये. इट इज नॉट इनवर्स, इट इज हेड एंड शोल्डर पैटर्न. इनवर्स जो होता है ये नीचे बनता है. हाँ सॉरी हेड एंड शोल्डर. ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमने बना लिया. लेट मी हाँ. ड्रॉ इट्स नेकलाइन आल्सो. ये नेकलाइन ही बना दिया. हाँ, नाउ आस्क. सो तो ब्रेक डाउन दिया और रिटेस्ट किया और फिर से जा रहा है ना, तो ये अप ट्रेंड में है सर, स्टॉक तो अप ट्रेंड में है. हाँ, लेकिन फिर भी ये जनरली क्या मतलब जनरली बोलते हैं कि हेड एंड शोल्डर्स ऑन अ लार्जर टाइम फ्रेम इज अ रिवर्सल पैटर्न. हाँ एग्जैक्टली. जी सर. सो मतलब अब वो समझ में नहीं आ रहा है सर, लाइक आपने एक्सप्लेन किए थे ना. हाँ, तो अभी मैं ये
मैं वही एक्सप्लेन करने का बोल रहा हूँ कि लोग रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है, यस बट कौन सा रिवर्सल है? देयर आर टू मूव्स, एक होता है इम्पल्स एंड नेक्स्ट इज करेक्शन. ओके, यस हाँ दिस इज फॉर अप ट्रेंड एंड दिस इज फॉर अप ट्रेंड, और इसको मैं थोड़ा सा, एंड दिस इज impulse and this is correction. This is for downtrend. This is for uptrend and this is for downtrend. यस Impulse and correction का हमको समझना जरूरी है. If we will look for reversal pattern, means like this move, this reversal, this retracement is bearish. Okay. yes sir. So if we will see a double bottom pattern here, अगर double bottom देखते हैं तो clearly theoretically it is showing a reversal pattern, but for which Yes. this trend means the minor trend. You are understanding what I yes want to say? हाँ Similarly, if समझ रहा we will see a head and shoulder pattern, अगर तो ये नहीं कि हम इस वाले ट्रेंड में हेड एंड शोल्डर ढूंढे, ये बड़े ट्रेंड में, we will look for head and shoulder in this trend. हमको इस ट्रेंड में हेड एंड शोल्डर ढूंढना है, रिट्रेसमेंट में, मींस in a larger time frame, means Yes, in an uptrend, market will go in retracement somewhere. We do not know when, Yes. but it will go in retracement. And in Yes, that sir. retracement, we will try to find double bottom pattern, triple bottom pattern, inverse head and shoulder pattern, or like if market is going in uptrend, तब हम क्या ट्रेड करेंगे? रिट्रेसमेंट पे डबल बॉटम वगैरह हम ट्राई करेंगे आइडेंटिफाई करने का. लाइक लुक, ये क्या है? अपना फेवरेट है, सबका फेवरेट है. You know what is this? Which chart I have opened right now? Bitcoin है भाई. Gaurav is not here ना. Look, यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है? Do you think I will be interested in trading this double bottom pattern? नहीं ट्रेड करूंगा यार मैं. I will not, क्योंकि ये मेरी स्ट्रेटेजी ही नहीं है. मेरी स्ट्रेटेजी ये है कि मैं इसमें सिर्फ रिवर्सल पैटर्न्स ढूंढूंगा इस वाले ट्रेड का. मतलब ये एक डाउन ट्रेंड आया और अब ये जो रिवर्सल हो रहा है, हम इसका रिवर्सल ढूंढेंगे. तो इसका रिवर्सल मिल गया अपने को, ये देवा यहाँ मिल गया. तो इसका जो टारगेट था यहाँ से यहाँ तक हमको डाउन ट्रेंड में मिल गया. अगेन अगर अपन जाएं तो यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखो बहुत सारे तुमको रिवर्सल पैटर्न्स तुमको दिख जाएंगे. फिर ये मार्केट ऊपर गया, एक शोल्डर बनाया, हेड बनाया, अगेन नीचे आया, फिर शोल्डर बनाया, बूम, और ये बहुत नीचे चला गया. इस बार तो रुका ही नहीं. डू यू थिंक वी शुड ट्रेड दिस? अब देखो एक और फेलियर वाला एग्जांपल देख लो कि फेल हुए हम लोग, जो मतलब कन्वेंशनल चीजें हैं वो फेल हुई हैं. कैसे? क्या ये क्लियरली ये तुमको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं दिख रहा है? Clearly inverse head and shoulder pattern, but I will not be interested in trading this inverse head and shoulder, man. I will not be interested in trading this because it is in downtrend. First अगर हमको ये bullish होना है इसमें, तो first Bitcoin should move like this कि प्राइस ये नीचे आया, ऊपर गया, then again came down, up, down, up. अब ये यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मैंने मार्क कर रखा है ना, इसके ऊपर निकल जाए, तब ये नीचे आके ऊपर जाना स्टार्ट कर, देन ओनली आई विल बी इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग सम बुलिश पैटर्न. इससे पहले मैं बेयरिश पैटर्न ही ट्राई करूंगा फाइंड करने का. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि मैं क्या बोलना क्या चाह रहा हूं यहाँ पे. और इससे क्या मतलब है हमारा, मतलब चार्ट पैटर्न ट्रेड करने से. Anyone having any doubt?
हेलो अभय भाई। हाँ हाँ, एक बार टीसीएस का डेली टाइम फ्रेम ओपन करोगे क्या? हाँ श्योर, एक सेकंड गिव मी जस्ट मोमेंट। टीसीएस का डेली टाइम, डेली चार्ट। हाँ हाँ, अभी तो मतलब अप्रैल से, हाँ दिस अप्रैल, अप्रैल से, हाँ दिस अप्रैल, from this April it was in uptrend, then it came down, फिर हाँ। से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, मतलब ये अभी डबल बॉटम बना रहा है ना। एग्जैक्टली तो अभी एक देखो मतलब वो ये क्रॉस भी कर चुका है। ये अप डाउन, ठीक है, ये अप हाँ, came back for retracement. yeah, Next target will be 3300, 3400 previous high, yeah. yes, previous high, up to previous high at least. और उसके बाद अब देखो, अब प्रीवियस हाई पे जाने के बाद ऐसा मत सोच लेना कि डायरेक्टली ये ब्रेक कर देगा, बिकॉज नाउ यू कैन सी कि अगर हम प्रीवियस हाई पे देखें अगर, तो इट हैज टेस्टेड ट्वाइस, एक बार दो बार, ये तीसरी बार जा रहा है। तो डोंट यू थिंक इट कैन मेक दिस काइंड ऑफ पैटर्न? अभी मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, उसके बाद और बेटर क्लियर हो जाएगा। तो हम ग्रीन कर लेते हैं। हाँ, ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है, डोंट यू थिंक कि इस टाइप का कुछ पैटर्न हमको मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है ना? हाँ मिल सकता। दिस इज इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, so anyone having any doubt? Or should we end this meeting for today? भैया आई हैड वन डाउट, मुझे ये पूछना था, न्यूज वाले जो स्टॉक्स रहते हैं, जैसे बिटकॉइन का आपने एग्जांपल दिया, तो इट वाज अफेक्टेड बाय न्यूज, तो वहां प्राइस एक्शन वर्क करता है कि फेल करेगा? मतलब क्या देखो, न्यूज तो बाद में आता है, प्राइस पहले बता देता है। जैसे हम लोग डोज कॉइन का ही एक देखते हैं, डोज कॉइन याद है ना? हाँ, जैसे अगर डोज कॉइन का देखें, इसमें भी मैं इसे थोड़ा रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पे ये डेली कैंडल है, इसको 4 आवर में चले जाओ। 4 आवर में देखो, जस्ट लुक एट दिस। जब एलन मस्क ने ट्वीट किया था, मार्केट ने उससे पहले, मैंने इनफैक्ट एक पोस्ट भी डाला था इंस्टाग्राम पे, इफ यू हैव क्लोजली वॉच्ड दैट, कि न्यूज तो बाद में आता है, मार्केट पहले क्लियर कर देता है कि यस आई एम गोइंग डाउन। यहाँ पे तुम देखो, क्लियरली देखो, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, और ये क्लियरली ये चैनल में था, ये क्लियरली ये चैनल में था। जैसा ये डबल टॉप यहाँ बनाया है, सेम ये डबल टॉप यहाँ बनाया है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेते अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से, क्योंकि ये अप ट्रेंड में था, ठीक है। ये अप ट्रेंड में, इसलिए हम यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते थे, हम सेलिंग नहीं कर सकते थे यहाँ पे, क्योंकि हमारा क्लियर कट है कि वी